Hi guys, good morning. Good morning everyone. Thank you for joining. Good I'm morning, audible? sir. Good Morning, morning, sir. sir. Yes, sir, you are audible. Okay, thank you guys. Um, so guys, today, the news about LPG cylinder, LPG halt. This is a quite disturbing news for even for our own household. Now, abhi to in hotels, probably there is a 60% cut, approximate, roughly 60% import cuts, and the supply is disrupted. At least in Mumbai, they are saying that मिल रहा है, but 8 days तक नहीं मिल रहा है. 8 days without cylinders in hotels will lead to a serious pullback on the hotel industry. So Aniket has written about this. Aniket, anything to add on? Yeah, sir. So, good morning, everyone. As you all know, like there is a ongoing war between US and Israel, and because of that, our energy sources like the crude and the LPG cylinders are being affected. And if we see like these are directly impacting our hospitality segment revenue because on a pie, if we see about 30% of our revenue comes from the F&B. So I'll be walking you through like with all the data points and how this news is impacting our limelight sector, that is hospitality. So if we see like nearly seven, and this is disruption is mainly happening in the major cities like Bengaluru, Delhi, Mumbai, Pune. So if we see like about 70% of the hotels in Bengaluru are facing this halted supply of LPG cylinders, and LPG cylinders are like a main fuel in our home kitchens. And this is being disrupted because of this West Asia conflict between US, Israel, and Iran. If we see like hotels mainly use a 19 kg cylinder, LPG cylinder, which was like refilled on a daily basis because of a high demand. But because of this disrupted war, Bengaluru Hotel Association floated you can say a circular and told like these cylinders will not be refueled and you have to shut down your businesses. And if you want to continue, you have to pay approx 1800 per 19 kg cylinder. So this rise of about 250 rupees a cylinder would directly impacting our operating margins, like the operating cost for these businesses. And the margins in the coming quarter, which is Q4, will be impacted. If we see on a macro level, F&B segment nearly contributes one third, that is approx 30% of hotel services revenue. And this is a good sizable revenue which is coming from F&B segment. If we see like about 360 plus hotels are operating in Bengaluru, and approx 40 plus chains, which includes luxury, mid-scale, and upper upscale. And among the listed players, IHCL has approx 4 hotels in Bengaluru and about 820 rooms in the city. ITC with two luxury properties and contributing 530 rooms to this segment. And Royal Orchid on the middle end, mid-scale end, operates about roughly about 303 hotels and 379 rooms in the segment. So, to conclude this story and to conclude this article, my takeaway would be this is not a serious issue. Like, this is impacting in the near quarter. Like, this rise in LPG cylinders and cost would be impacting the margins in the near quarter. But this is a one off, and this doesn't impact in the structural growth which is happening in the hospitality sector with rising you can say the per capita income and the experience spending which is happening on a consumer level will be will be taken on a positive note for our hospitality sector. And two stocks to look into are IHCL, Leela Palace, Chalet, and Lemon Tree. I think अनिकेत पूरे इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट होगा. इट्स बिकॉज वो सब बेंगलुरु में एंड मुंबई में तो होटल्स है ही. मतलब इट इज नॉट कि ऐसा कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं जिसका बेंगलुरु इसमें होटल नहीं है. प्रॉब्ली एक हाथ ये क्वार्टर पे इम्पैक्ट होगा मे बी Correct. मार्च क्वार्टर. हाँ, बट अभी ये कितना सीरियस इशू है
what I'm feeling is, मतलब जब ये न्यूज पढ़ रहा था, अभिषेक वो है, he sent me in the morning कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है होटल इंडस्ट्री में. Overall, so we were discussing that वापस एक दो quarters will be in a mess again for hotel industry. कि ये impact आएगा. In the conference call you will see उसने बोला hotel gas impact हुआ है तो हमारा food and beverage गिरा है. Probably. One second, this one just a minute. So impact हुआ है तो probably this will lead to another 2-3 quarters of underperformance, and every time you will see in the conference calls कि रेवरेज में रेवेन्यू गिर गया है. अप्रोक्सीमेट हम जब भी देख रहे थे 50% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम फूड एंड बेवरेज ओनली होटल्स में. तो इट इज अ बिग 50 नहीं बोल सकते, 30 के आसपास है ऑन एन एवरेज. 1/3 सही. सो हाँ, ये इश्यूज है ओवरऑल इन द इंडस्ट्री. तो ये this will happen maybe in the next 1-2 quarters, and I don't know how significant this impact is because uh, ये जो अभी क्रूड ऑयल इम्पैक्ट है, अगेन एफएमसीजी का भी है आज इसमें. क्रूड ऑयल इम्पैक्ट है, इंक्रीज इन एनर्जी प्राइसिंग विल लीड टू डिक्रीज इन मार्जिन. अभी हमारा फोकस है कि इंडिया में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं. तो दैट एज यू राइटली मेंशन, द लॉन्ग टर्म ग्रोथ लुक्स इंटैक्ट. बट अभी ये है कि जब ये मार्केट गिरेगा तो विच इज योर गो टू स्टॉक. आज अगर मुझे इन्वेस्ट करना है ना, निफ्टी इज डाउन लाइक 10% फ्रॉम द मिड स्टॉक. तो विच इज द स्टॉक टू इन्वेस्ट करेंटली, एंड तुमको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सा स्टॉक और नीचे नहीं जाएगा कि जिसका ग्रो स्टोरी इंटैक्ट है. ये सब चीजें जो भी हो रहा है, सिर्फ वॉर इज वन ऑफ रीजन. ये क्या है, मार्केट गिरा है तो वापस इट विल रिकवर एट सम पॉइंट इन टाइम. बट उसके पहले जो एप्लीकेशन आएंगे वो कौन सी इंडस्ट्री पे आएंगे. ऑब्वियसली यस, होटल ये तो ठीक है, टूरिज्म विल इम्पैक्ट अ बिट. तो वन वन टाइम है. बट आई थिंक एफएमसीजी के बारे में भी है. सो वुड लाइक टू प्रेजेंट ऑन एफएमसीजी. शांतनु. Yes, sir. Yeah. Yeah. Right. Yeah. Good morning, everyone. Today, I will be present a short news update on the FMCG sector in India. Due to West Asia tension and rising geopolitical uncertainty, India consumer sentiment has weakened. As a result, demand for discretionary FMCG product like home care and personal care decline in January and February 2026, while consumers are shifting their spending towards the essential food items. Because of this trend, overall FMCG value growth slowed to 5.7% in January and 5.5% in February, compared to 9.5% in December 2025, when demand was boosted by GST cuts and inventory normalization. In a term of regime, urban growth dropped sharply to 2.2% in January and 3.9% in February, compared to the 6.5% in December, mainly due to uncertainty, job losses, and trade-off tariff issues. However, rural growth remained relatively stronger, recording 7.7% in January and 6.5% in February, although this was still lower than 11.3% in December, supported by government spending programs. Looking at categories, home care growth slowed to 3.3% in January and 3% in February, while personal care growth stood at 3.6% and 4.3%. In constants, essential categories performed better. Dairy grew by 7.9% in January and 11.7% in February. Packaged food grew by 5% in January and 12.6% in February. Also, beverage grew 10% in January and 10.1% in February, partly due to early heat waves. Meanwhile, chocolates and confectionery growth slowed to 6.4% in January and 4.5% in February, compared to the 10.7% in December. Also, commodities growth declined from 17.3% in December and 10.7% in January to 4% in February.
And conclusion is weak discretionary FMCG demand may pressure revenue growth of Indian FMCG company, especially those focused on FM home and personal care. In that such as HUL, Dabur and Godrej consumer products. अंतनु, मैंने बोला एआई को बोलने को तो पूरा ही तुमने एआई पे लिख दिया। क्या बोला तुमने? मुझे एक दो सेंटेंस में बताओ, व्हाट इज दिस न्यूज अबाउट? सर क्या हुआ न्यूज? एफएमसीजी में पर्सनल और होम केयर के लिए डिमांड कम हो रहा है, और जो इसेंशियल गुड्स है सिर्फ उसका ही डिमांड बढ़ा हुआ है क्यों? बिकॉज ऑफ द एशियन वॉर, वेस्ट एशिया क्राइसिस। इट्स मतलब उसकी वजह से जो इंडियन पीपल है उनका माइंडसेट सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पर फोकस हो रहा है, और वो होम केयर और पर्सनल केयर गुड्स अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए डिमांड कम हो रहा है। डिमांड कम, मुझे पहले बता, डिमांड कम हो रहा था, मुझे उसके सब रीजन बताओ एक साथ। अचानक से मत बोलो वेस्टर्न, अभी ये वॉर हो रहा है तो वॉर का क्या संबंध है डिमांड से? मैंने कितने बार उनका बोला है, माइंड्स व्हेन यू टॉक अबाउट डिमांड डिक्रीजिंग तो डिमांड डिक्रीजिंग के बारे में ही बोलो, बीच में से वॉर किधर आ गया तुम्हारा? तुमने अभी बोला कि डिमांड डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है? सॉरी, वापस बिकॉज बोलो, ऑफ क्यों द डिक्रीज? वॉर टेंशन। वॉर टेंशन से क्या समझ? तुम वॉर हो रहा है तो तुमने दूध पीना बंद कर दिया, चाय पीना बंद कर दिया? नहीं, जो इसेंशियल गुड्स है उसकी डिमांड है वो अभी स्टूड है, मतलब कि उसके लिए डिमांड बढ़ रही है इसेंशियल गुड्स के लिए, और तो जो उसमें तुमने होम रूरल केयर। और रूरल अर्बन भी बोला, रूरल इज ग्रोइंग फास्टर देन अर्बन। रूरल डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारे जो इसेंशियल गुड्स है उस उसका जैसे डिमांड बढ़ रहा है, जैसे जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, इसेंशियल due फूड्स, to West डेयरी Asia प्रोडक्ट, tension and पैकेज rising फूड्स। geopolitical uncertainty, Indian consumer sentiments has weakened. As a result, demand for discretionary FMCG products like home care equal. Heading ये था, consumer FMCG value growth slips in January to February. The global trigger is across the country appears to be waiting on the Indian consumers, with demand for discretionary items such as home care, personal care taking a hit in January. Spending on food, on the other hand, has grown the same period। वही में था essential products के बारे में। तो तुम्हारा हेडिंग है अबाउट जियोपॉलिटिकल टेंशन, भले वो लोग ने लिखा है स्पेंडिंग ऑन फूड, तुम बताओ क्या हो रहा है? ग्रोथ, मैंने कितने बार बोला था कि हेडिंग में तुम्हारा ग्रोथ चाहिए, किधर है तुम्हारा? स्टार्ट जब तुमने किया कितना हुआ ग्रोथ? सर कुछ डाला है ना, जाने वॉर कब चालू हुआ? फेब्रुआरी। कब चालू हुआ वॉर? बताओ, गूगल करो कब चालू हुआ वॉर। फेब में हुआ सर, कौन से डेट को? एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम। कौन से डेट को चालू हुआ वॉर? 28 फरवरी। 28 फरवरी। तो एक दिन में पूरा डिक्लाइन हो गया, पूरा एक दिन में डिमांड कम हो गया। जिस दिन वॉर कम हुआ उस दिन तुमने पर्सनल पेयर प्रोडक्ट खाना लेना छोड़ दिया उसी दिन। क्या दिया है? इन जैन टू फेब ना? यस। देन एक दिन वॉर हो गया तो पूरा डिमांड डिक्रीज हो गया एफएमसीजी का। लिखा भी है, लिखा है तुम्हारे में, तुमको ढूंढना क्यों पड़ा वॉर कब चालू हुआ वो? So guys, in this news, probably see understand, when you talk with a fund manager, तुम ये क्या बात कर रहे हो? जनवरी से फरवरी पे, जनवरी टू फरवरी बोल रहे एफएमसीजी वैल्यू ग्रोथ स्लिप इन जनवरी फरवरी, तुम बोल रहे हो वॉर के वजह से डिक्रीज हुआ। इज इट एक दिन वॉर हुआ तो डिक्रीज हो गया अचानक से वैल्यू? अदर ऑल्सो आई एम आस्किंग, इज इट कि वॉर के वजह से डिक्रीज हुआ? 28 फरवरी को वॉर हुआ,
फरवरी कितने मंथ्स का होता है? 31। 28। लास्ट डे पे वॉर हुआ, तो तुमने क्या बंद कर दिया? होम केयर प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया लास्ट डे पे, जिस दिन वॉर हुआ उस दिन, और इसके वजह से अचानक से पूरा डिक्लाइन हो गया। बट सर सप्लाई स्ट्रेंट हो जाता है तो फिर सारे जो जिनके पास सप्लाई रहता है प्रोडक्ट का, वो उसको बहुत कॉन्शियसली और अपने प्रॉफिट के लिए यूज करना चाहते हैं। जैसे काफी मतलब सप्लाई नहीं मार्केट में करेंगे क्योंकि उनके आगे से सप्लाई अनसर्टेन है। तो उसी रीजन से भी कुछ हो सकता है। हेडिंग क्या है? ये जो नंबर है 5.5%, सॉरी, ओवरऑल ग्रोथ इन 9.5%, स्लोज इन, ग्रोथ स्लिप्स इन जनवरी फरवरी। हिस्ट्री बता रहे हो, फ्यूचर बता रहे हो? फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो तुम? Just think and answer because this all thing is very important, क्योंकि वो लिखा है वो लोग ने जैन फेबर, तुम बोल रहे हो 28 फरवरी को हुआ, इसके लिए ग्रोथ डिक्लाइन हो गया। इज इट, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? The uncertainty in urban areas has been on account of job loss, trade tariffs related issues, as well as geopolitical tension that is impacting the sentiments. Geopolitical tension is at the last. जॉब लॉसेस हुए हैं, आईटी में हुआ ना अभी जॉब लॉसेस, ट्रेड रिलेटेड टैरिफ्स। तो ये बेसिकली जो ग्रोथ डिक्लाइन हो गया इट्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स इन अर्बन में। रूरल में क्या हो रहा है? सर रूरल में अच्छी डिमांड है हाँ, क्यों? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज लेकर आ रहा है रूरल एरिया में। बस न्यूज उतना ही था, पूरा उतना ही न्यूज था। डिमांड इज एट 5.5, डिमांड एफएमसीजी, ओवरऑल एफएमसीजी हैज ग्रोन एट 9.5%, उसमें से ऐसा नंबर्स टैली क्यों नहीं रहा? ओवरऑल एफएमसीजी वैल्यू ग्रोथ slowed to 5.5%, 5.7%, 5.5% in January and February, respectively, compared to 9.5% in December. ये 5.5% क्यों हुआ? वो भी उधर भी वॉर हुआ। वॉर फरवरी एंड पे हुआ है, when demand received a boost from GST cut, और 9.5% भी क्यों हुआ है? because there was a demand from GST cut. तुम्हारा किधर है? तुम्हारे पूरे इसमें ये तीन नंबर्स किधर है शांतनु? तुमने बताया हेडिंग में आने से ना तीनों नंबर, हाँ सर। फिर दिखा भी रहा है यहाँ पे। ओवरऑल ग्रोथ इंडिया में इतना है, अर्बन में 6.5 है, रूरल में 11.3 था। कि रूरल का भी डिक्लाइन हुआ है at some point in time. The focus still remain on essential categories, while non-essential spending will be muted. This trend will be likely visible in March too. The West Asia conflict drags on. तो ये बाद में आएगा, मार्च का ग्रोथ आएगा। मार्च में भी वो बोल रहा है कि जो ग्रोथ डिक्लाइन होगा मार्च में भी वापस ग्रोथ डिक्लाइन होगा बिकॉज ऑफ वॉर नाउ। अच्छा न्यूज है, दिस इज सो बिग न्यूज। तुमने पूरा शांतनु जस्ट एआई को बोल दिया लिखने को, किसी को कुछ नहीं समझ, मुझे तो कुछ नहीं समझा तुमने क्या न्यूज में बोला। एनीवन एल्स हैव रिटन ऑन अ ट्राई? एनीवन एल्स किसने लिखा है? Then can I? या पर Yeah. So, uh, quick update on FMCG sector. Volume growth slowed materially in Q4 FY 2025, with sector reporting 2.6% volume growth, the slowest in the seventh quarter. Value growth also moderate to 7.8%. On the demand side, rural growth slightly overpassed urban, with rural growth up by 2.9% and urban growth by 2.3%. The rural recovery was more majorly supported by good monsoon and stronger agriculture output, while urban demand has been slowed down due to job uncertainty and lower income growth. Channel trend shows a clear divergence.
traditional channel growth slow recovery to 1.1%, whereas the modern channels has been shown fast recovery by 15.5%. At the category level, food has been dominating the FMCG sector with 61% share and growth by 2.8%. Overall demand moderation led by urban slowdown, while rural recovery and modern trade remains the primary source of FMCG growth. Sorry, what remains? Sorry, come again. Last point. Sir, the last point is that the demand of FMCG sector is moderate because of the slower growth in urban, and it has been recovering due to the rural recovery and uh, and modern trade. Modern trade. Okay. हाँ कार्तिक, अच्छा लिखा न्यूज, बट यू कैन नो रिफ्रेम इन अ मच बेटर. जो तुमने डेटा पॉइंट लिखे अप्रिशिएटेड, काफी अच्छे डेटा पॉइंट है. जो Thank you, sir. बोल्ड किए है, मेजरली डोंट बोल्ड द एंटायर सेंटेंस, ओनली बोल्ड द परसेंटेज. ठीक है, Okay, sir. Okay. पूरा सेंटेंस बोल्ड करने में कोई मतलब नहीं है ना, ऐसा है. Okay, sir. ओके, तो क्योंकि तुमको भी तो याद रहना चाहिए बात क्या करनी है, बिकॉज एज आई सेड डेटा पकड़ के बात करनी है. तो फाइन, वेर वेर इनफ दैट एफएमसीजी इज रिपोर्टेड. ना ये 2.6% वैल्यू ग्रोथ किधर लिखा? अच्छा, वैल्यू ग्रोथ है क्या ये? वॉल्यूम ग्रोथ, सॉरी. Yes, sir. वो कहाँ पे लिखा है? इसमें लिखा था क्या? Sir, on the first para only. 5.5 है वो, मैंने 2.6% वॉल्यूम ग्रोथ कब लिखा है? Sir, in the first line itself, like Indian FMCG sector reported 2.6 volume growth in the December 2025 quarter, the slowest in the seventh quarter. मतलब ये पेज पे है क्या? विच लाइन में? यहाँ पे? Sir, like up in the upper side, ऊपर. अच्छा, ये वाला. ओके. Yeah. Urban FMCG value growth. अच्छा अच्छा, so see now, rural FMCG is divided into two parts, urban and rural. ठीक है, पर उसमें तुमको एक फुल भी तो लेना है. So you start with the full amount and फिर वो urban and rural को वन करो. So India's Okay. FMCG sector reported 2.6% नहीं है. वो है क्या? दिया है यहाँ पे. अर्बन है ना, अर्बन एफएमसीजी वैल्यू ग्रोथ stood at 2.2%, 3.9%. अच्छा, एफएमसीजी वैल्यू ग्रोथ. ओके, एफएमसीजी वैल्यू ग्रोथ इन होम के डिक्लाइन. ये सी स्पेसिफिक अलग अलग दिया है. तो ये ना अभी यहाँ पे सेक्टर वाइज दिया है. देखो तुमको अगर मैं देखूँ ना, एफएमसीजी इज डिवाइडेड इनटू बेवरेजेस, chocolates and infectionary, commodities, dairy products, packaged foods, home care, personal care. ये एफएमसीजी के सेगमेंट्स है. ठीक है, तो ओवरऑल सेगमेंट कितने से बड़ा है? ओवरऑल सेगमेंट बड़ा है 9.5 से. ओके, उसमें फिर अर्बन और रूरल कितने से गिरा है वो तुम बताते हो. फिर उसमें कैटेगरी, जैसे कल वो ऑटोमोबाइल का रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा था, कि मैंने उसको बोला कि पहले तुम बात करते हो पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर के, फिर डोमेस्टिक और इंटरनल की बात करो, फिर उसमें सेगमेंट्स की बात करते हो. तो फिर जैसे देखो, मुझे ऐसे समझ रहा है कि होम केयर सेक्टर डिक्लाइन हुआ है. तो माई क्वेश्चन विल कम, हाउ? ये सबसे ज्यादा वो डिक्लाइन हुआ. फिर इसके देखो कमोडिटीज ये जो थे वो काफी 4% पे आ गए. तो इसमें क्या हुआ? बेवरेजेस इज ग्रोइंग. किसी बेवरेज कंटिन्यू तो होगा कहाँ पे? तो बेवरेजेस क्यूब कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है. हाँ, पैकेज फूड एंड फेवरेट पैकेज फूड posted a value growth of 5%, 5% respectively. Spending on beverages also remains strong through January, partly due to heat wave. That's it. देखा देखा, लिखा होता है वो हमेशा. जब जब एक बड़ा मूवमेंट होता है वो हमेशा लिखा होता है कि क्या हुआ है. दिख रहा है ना नंबर्स में, Yes, sir. इतना बड़ा ग्रोथ हुआ है. बाकी सब डिक्लाइन हो रहे हैं पर बेवरेजेस इंक्रीज हो रहा है. क्यों? सब बिकॉज ऑफ हीट वेव दैट सेट इन अर्ली इन द ईयर. Okay, sir. अभी होम केयर क्यों डिक्लाइन हो गया? तो तुम रीजन ढूंढो. नहीं लिखा है यहाँ पे तो यू हैव टू फाइंड द रीजंस इन द न्यूज़पेपर्स या गूगल करो कि होम केयर का डिमांड क्या हुआ है लास्ट 2 महीने में. बिकॉज ये सब चीजें वापस तुम्हारे कॉन्फ्रेंस कॉल में आएगी. जब तुम कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ोगे तो पता होना चाहिए क्या है.
एंड आज अगर इफ यू आर रीडिंग दिस न्यूज, तुमको पता होना चाहिए कि एफएमसीजी इतने सारे सेक्टर्स में डिफाइंड है। लेट्स से तुमने अभी तक कोई एफएमसीजी कंपनी ट्रैक नहीं की है, बट जिस दिन ट्रैक करोगे तुमको भी दिखेगा उसमें कि इसमें भी होम केयर सेक्टर है, पैकेज फूड्स है, पर्सनल केयर है। तो जैसे एचयूएल में सबसे बड़ा है होम केयर एंड पर्सनल केयर, जो दोनों डिक्लाइन हुआ है। डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ये चॉकलेट यूजुअली नेस्ले के है, तो नेस्ले माइट हैव डन वेल। बेवरेजेस भी है नेस्ले के। तो ये हमको बस समझता है। इसके लिए वो जितने भी डेटा पॉइंट्स है सबके सब तुम्हारे इसमें आने चाहिए। ठीक है, तुमने वो थोड़ा Okay, sir. लिखा अच्छा है, बट मिस कर दिया है, ऐसा है। और भी लिख सकते थे, बाकी इट इज Okay, फाइन। sir. Okay, sir. Thank you. ओके। या या तुषार, तुषार, यस। एनीथिंग ऑन ऑथर? Hello. या तुषार। Hello. Am I audible, sir? या यू आर, यस। Good morning, everyone. I'll be presenting an article on the Ather Energy. So, Ather is significantly accelerating its distribution expand to counter the strong dealer network of legacy OEMs. The company now targets 1,100 to 1,200 stores by March 2027, implying addition of roughly 400 new outlets over the next year. This strategy is already translating into measurable market share gains. Ather has expanded its stores network from 350 stores in the previous years to 700 stores in FY26, during which its EV market share increased by 1120 basis points to 18.8% in Q3 FY26, helping the company move to the number 3 position in India's electric two-wheeler market. Also, operational momentum has also improved. Ather recently outperformed Ola Electric in quarterly revenue, reporting 9.41 billion in Q2 FY26 and 9.96 billion in Q3 FY26, compared with 7.56 billion in Q2 FY26 for the Ola and 5.4 billion for Q3 FY26, which also surpassing it is in quarterly volumes and valuation over the past 6 months. Previously, as we are discussing about the Ether facing hurdle in scale up, so it was due to legacy OEM using their strong ICE cash flows and dense dealer network to aggressively expand their EV presence. So previously, what has Ether done? It has expanded its production capacity to 1.4 million units, and also it is preparing to enter into mass segment EV of 1 to 1.25 lakh segment. But this planned addition of around 400 new stores by FY27 will be critical to support this strategy, as scaling a mass market EV portfolio will require wider retail reach and deeper distribution penetration across the country. Okay, so Athar is planning for I don't know 400 stores. Okay. Yes, sir. अथर का मार्केट शेयर कितना है? 18.8%, sir, as of Q3 FY26. Q3 FY26. Okay. So which is the top? I think TVS है, second Bajaj, third I is think, Athar, no? yes, sir. Yes, sir. Fourth is Vida, like Fourth Hero. is Bajaj. Okay. 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 Fine. Good one. Okay. अथर का बार Uh, बार बार आ रहा है, उस दिन भी था ना अथर के बारे में? हाँ सर, मतलब एक बार एक्चुअली 3rd मार्च को एक आर्टिकल आया था कि एथर इज फेसिंग टू स्केल अप, क्योंकि Scale up, लेगेसी yeah. ओईएम आइस कैश फ्लो, अपना जो आइस का उनका मार्जिन है वो कुशन उनको मिल जाता था, देन उनका डीलर नेटवर्क एकदम डीप था। तो फिर उसके लिए उन्होंने फर्स्ट दे काउंटेड विद एडिशनल कैपेसिटी, लाइक दे वर हैविंग समथिंग 450,000 यूनिट कैपेसिटी, नाउ इट इज एक्सपांडिंग टू 1.4 मिलियन बाय FY28। वो उस दिन के आर्टिकल में था। ऑल्सो दे वर प्लानिंग टू एंटर इनटू मास मार्केट सेगमेंट ईवी इन द 1 to 1.25 लाख सेगमेंट। बट अभी मतलब प्रोडक्शन बढ़ा रहे, ईवी भी बढ़ा रहे, बट रिटेल आउटलेट बढ़ाना ही जरूरी था। तो यस, दे हैव प्लेड वेरी गुड वे। Okay. Okay. Fine. Bhupender, anything to add on? Yeah, sir. I have written same on this news. Go So on. can I continue, sir? Okay. Yeah, go ahead. Yeah. Okay. Good morning, everyone. So, Ather Energy plans to expand its retail footprint. A key development in India's EV two-wheeler market is the aggressive distribution expansion by Ather Energy. The company plans to scale its retail footprint to around 1.2K stores by FY27, strengthening its distribution network amid rising demand for electric two-wheeler. Following the launch of its the EL platform, what
Ather may further accelerate this expansion by adding nearly 500 additional outlets, potentially taking the total store count beyond 1.2K location in FY27. Interestingly, the expansion come at a time when rival Ola Electric is rationalizing its retail network, reducing stores from around 4,000 to about 700, highlighting contrasting distribution strategies within the EV two-wheeler market. Operationally, Ather has been gaining strong momentum. Its market share increased significantly from 7.6% in Q1 FY26 to 18.8% in Q3 FY26. In the calendar year 2025, sales reached about 2.01 lakh units, reflecting the robust 59% year-on-year growth. Additionally, revenue in Q3 FY26 stood at 996 crore, marking a 5.8% करोड़ में quarter-on-quarter नहीं बात increase. करते हैं. सॉरी सर, वो मिलियन में उसको कन्वर्ट कर दूंगा. हाँ. Marking a 5.8% quarter-on-quarter increase. So coming to the conclusion, overall, Ether's expanding distribution network and improving operational performance, indicating strengthening competitive positioning in India, rapidly growing EV two-wheeler segment. Thank you, sir. It has, see, now you have to stress on this point that, sir, it has increased from 7.6% in Q1 FY25 to 18%. That's a huge increase. है ना, तो तुमको वो fillers डालना है. That's a huge increase in the last 1 year. And ये क्यों हुआ है? ये क्यों हुआ है? सर उन लोग का बेसिकली सेल्स उनका इंक्रीज हुआ है, बता रहा हूँ सर कितना. क्यों हुआ है? वही वो तो पता है ना, सेल क्यों हो गया है. सर वो लोग कंटिन्यूसली न्यू लॉन्चेस कर रहे हैं, और उनको और एडवांटेज क्यों मिल रहा है, ओला अपना मार्केट शेयर भी लूज कर रहा है बिकॉज ऑफ द बैड आफ्टर सेल्स सर्विस. एंड on that point, Ather is focusing on that, and with the help of the launching new product and expanding their retails in tier 2 and tier 3 cities. So because of this, their market share is increasing. अच्छा, अथर के कितने प्रोडक्ट्स है? सर टोटल अभी पूरा टोटल नहीं पता है सर. क्यों बताना चाहिए ना. क्वेश्चन तुमको आने चाहिए ना जब तुम बात कर रहे हो. ठीक, क्वेश्चन है कि अथर का इतना शेयर बढ़ गया है. एक रीजन है बराबर कि चलो ओला ने मार्केट शेयर डिक्लाइन हो गया, इसके लिए अथर का शेयर बढ़ गया, पर इतना नहीं बढ़ सकता. सच में उसमें प्रोडक्ट में कुछ है. तो अगर मैं तुमको बोलूँ तुम अथर कंपनी हो तो मुझे बताओ तुम्हारे प्रोडक्ट में क्या फर्क है कंपेयर टू अदर्स. तुषार, सर इसने हाँ. सॉरी, Yes, sir. व्हाट इज द Hello. डिफरेंस? तुमने भी ये न्यूज़ बताया. Yes, एक sir. अथर के प्रोडक्ट First, में और बाकी के टीवीएस एंड ये हीरो है. टीवीएस, but we know these are the legacy companies. So yes, sir. how is this startup comparing these legacy companies? उस Okay, दिन sir. न्यूज था that they are improving their footprints. आज भी है that they are increasing their footprints. वो ठीक है. That is one part. Adding 400 Correct. stores. तो क्या है? So that लोगों को पता चले. But at the same time, what is the difference? Yes, sir. Sir, answering your first question, so it has four model. उसके अलग अलग वेरिएंट है. एक तो सबसे इनका ट्रेंडिंग मॉडल है विस्टा स्कूटर, विच इज द फैमिली स्कूटर मॉडल एंड आल्सो द टॉप सेलिंग मॉडल. देन इट, और ये थोड़ा मास मार्केट वाला है. देन इनका एक प्रीमियम ईवी मॉडल है 450 एपेक्स. उसमें और दो मॉडल है 450 एक्स और 450 एस. 450 एस स्टार्ट हुई थी, और अभी 450 एक्स एपेक्स उनका सबसे प्रीमियम मॉडल है और मास मार्केट विस्टा है. और सर कंपेरेटिवली EV, Ather is, kind of tech savvy and tech future oriented electric vehicle scooter. It also offers premium features. Premium features are जैसे uh, पूरा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड है. एंड बॉडी वाइज ऑल्सो इट इज वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग. सर जब इन्होंने मार्केट एंट्री की थी ना, तो जब हेलो. Hello, yeah, go ahead. ये सर, सो सर तो इनका जो बेसिकली जो मॉडल है वो काफी स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली टीवीएस आई क्यूब एंड बजाज से. और सर जैसे मतलब ये कैसे है ना, मेरे को लगता है ये एथर है ना टीवीएस और आई बजाज का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बिकॉज टीवीएस इज वेरी गुड इन फीचर्स.
अभी एथर फीचर्स में भी अच्छा, और बजाज सर बॉडी वाइज देखे ना, बॉडी मेटल का बॉडी प्रोवाइड करता है बजाज चेतक, वेर एज टीवीएस आईक्यूब इज फाइबर बॉडी। और ये सर जो और जो एथर है, सो सेम मेटल बॉडी नहीं है, बट इसका काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, यू नो व्हेन इट लाइक आई हैव सीन यू नो क्रैश टेस्ट इनको 2 या 3 फ्लोर से उनको ड्रॉप करते हैं ना, स्टिल दे you know vehicle is having no issues, like it is running properly, whereas if we do the same with TVS iQube, that it will have a major impact. So overall build quality is very good, feature oriented है, and it is kind of premium EV, which makes it separate. But however, it like sales, of course थर्ड नंबर पे मास मार्केट ईवी नहीं है, थोड़ा प्रीमियम ईवी है, इसके लिए उनका सेल थोड़ा कंपैरेटिवली कम है, बट इट्स वंस इट एंटर्स इनटू द मास मार्केट सेगमेंट ईवी, which is 1 to 1.25 लाख बैंड, तो इसका सेल्स और बढ़ेंगे सर, क्योंकि एथर एक्चुअली बहुत अच्छा ब्रांड है ईवी में, इस मैं वजह से प्राइसिंग नहीं मैं तो बोला, प्राइसिंग नहीं बोला तुमने, मास मार्केट वाले तो प्राइसिंग। सर जो अभी एंटर करने वाला है ना, वो 1.1 लाख से 1.25 लाख का है, और अभी जो इसका रिश्ता का है वो सर 105,000 से स्टार्ट होता है 131,000 का एक शोरूम। ओके। और जैसे बाकी जो सर जिनका जो 450 एपेक्स है ना, आपको मैंने बोला प्रीमियम, वो 180,000 तक स्टार्ट होता है। अच्छा 180 था, अच्छा 1,80,000 यस तक सर, है। ओके। वो तो बहुत, मतलब उसका रेंज भी बहुत अच्छा है सर। अच्छा, और इज द रेंज? रेंज सर उसका 157 किलोमीटर है सर, जबकि रिश्ता का 123 से 159 है, मतलब जो एंट्री का मैंने बोला ना 105,000 से हाँ। स्टार्ट होता है, उसका 123 से रेंज स्टार्ट होता है, मतलब आईडीसी रेंज जो उन्होंने क्लेम करते हैं, ऑफकोर्स रियल रेंज 15-20% लेस आता है। ओके, फाइन, फेयर इनफ। भूपेंद्र, इसको कैसे पता, तुमको क्यों नहीं पता? को मैंने अलग सिखाया, तुमको अलग सिखाया। नहीं सर, वो खुद से रिसर्च करा। हाँ, तो अभी ये सब चीजें खुद से करनी पड़ती है ना, एवरी टाइम प्रोफेसर डोंट टेल। राइट सर। या प्रोफेसर क्या, एज एन एनालिस्ट भी मैं तुमको थोड़ी अज्यूम करेगा, तुम मुझे न्यूज बता रहे हो, तो बेसिक तो कुछ पता होना चाहिए तुमको, क्या बिकता है, क्यों बढ़े। बिकॉज द पॉइंट यू साइड दैट इट हैज, अभी मैं क्वेश्चन क्यों पूछा पता है तुमको, वरना मैं क्यों पूछता सर? भी नहीं तुमको ये क्वेश्चन। वो क्वेश्चन तुमने लिखा कि इसका मार्केट शेयर इतने से इतना बढ़ गया, तो एज एन एनालिस्ट तुमको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, इतना कैसे बढ़ गया, दिस इज नॉट अ नॉर्मल ग्रोथ ना। यहाँ पे लिखा भी है 59% ग्रोथ, हाउ इट इज पॉसिबल। ओला का शेयर गिरने से इतना नहीं हो सकता किसी का ग्रोथ, प्रोडक्ट अच्छा होगा तब लोग लेंगे ना। राइट सर। तो कौन से प्रोडक्ट है, और ये टीवीएस बजाज और एक लिस्टेड कंपनी है, तो ये हाउ इज इट कंपेयरिंग टीवीएस बजाज एंड हीरो, जो ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स है। तो ये ऑल्सो तुषार ने भी अच्छा बोला कि उसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। सी वो रॉन्ग भी हो सकता है इसमें, वो बोलेगा सर नहीं, मुझे तुम बोल सकते हो सर मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे लगता है अथर बकवास है, फाइन। इट इज नॉट अबाउट एनी वन बींग राइट और रॉन्ग। उल्टा अच्छा है कि वी हैव टू कंपेयर, उसको अच्छा लग रहा है तुमको खराब लगा, मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा टीवीएस ही अच्छा है, दोनों खराब है। तो ऐसे से ही स्टॉक्स निकलते हैं। एंड दिस ऑल थिंग्स, लेट्स से तुम जब जाते हो इंटरव्यू में किसी इन्वेस्टमेंट थीसिस लिखने को, तो इन्वेस्टमेंट थीसिस रोल्स अराउंड ऑल दिस थिंग्स। मतलब जैसे अगर मैं होता, मैं अगर ना अथर के बारे में नेगेटिव होता तो मैं कितना सारे नेगेटिव पॉइंट बोलता, बट सेम पॉइंट तुषार ने उसी को डिफेंड किया कि हाँ सर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टीवीएस खराब है, बट अथर उससे बेटर है। या फिर अथर उससे बेटर क्यों है कि उसका बिल्ड क्वालिटी खराब है, प्राइस रेंज और मे बी रेंज में मास सेगमेंट में वो ला रहा है, and जबकि टीवीएस का है महंगा। तो तुषार ये भी होना चाहिए कि टीवीएस का जो है वो कितना महंगा है मास मार्केट में, अगर ये 1.2 है और टीवीएस का भी 1.2 में या 1.4 में, तो दोनों में क्या फर्क है, वाई विल पीपल प्रिफर टीवीएस ओवर अथर। आई थिंक टीवीएस के पास दो ही है ना, दो ही नहीं प्रोडक्ट्स है। सर, टीवीएस हाँ। के पास तो ये 2 प्रोडक्ट है, बट उनका जो iQube है ना, उनमें उसके पास हम्म, 5 वेरिएंट है। और एक्चुअली उसका जो एक्स शोरूम स्टार्ट होता है 109,000 से, और ऑन हाँ। रोड में समझो ना, मतलब वो पीएलआई बेनिफिट्स होके 108,000 से स्टार्ट हो जाता है, जिसका वो ओके। कुछ आपको एक्चुअल उनका आईडीसी क्लेम रेंज मिलेगा 94 किलोमीटर, वेरेस इन दी एथर अभी ऑन रोड मैंने आपको बताया कि 108,000 मिलता है, अब जबकि एथर का जो रिश्ता मैंने आपको बताया ना ऑन रोड बेसिक वाला, वो 122,000 का मिल जाएगा, तो आपको नियरली 12 to 14,000 का गैप मिल जाता है। ओके, 12 to 14,000। रेंज, यस सर, मतलब बेसिक वेरिएंट में बोल रहा हूँ। ओके, और रेंज में क्या फर्क है फिर दोनों के? सर आपको इसमें
टीवीएस बजाज सॉरी टीवीएस आई क्यूब में आपको रेंज मिल जाएगा 94 क्लेम्ड है, और इसमें मिल जाएगा आपको एथर में 123। तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है। यस सर। ये अतर का रेंज सेम प्राइस, अतर रेंज इज मोर हायर देन द टीवीएस। यस सर, बट कैसे है ना, आपको पता मतलब इंडिया इज काइंड ऑफ प्राइस सेंसिटिव, वो चीज मतलब बहुत सारे एजुकेटेड बायर्स को वो समझ जाएगा कि वो और ईवी कॉस्ट ओनरशिप निकालेगा, बट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअल अपफ्रंट कॉस्ट देखते हैं कि नहीं नहीं ये तो 12,000 सस्ता है, तो मैं मतलब वो ज्यादा सस्ता है ऐसा, बट ओवरऑल देखने जाए तो मतलब वो फिर अलग लेवल का कैलकुलेशन होता है। सॉरी, तो आई गॉट यू रॉन्ग, टीवीएस सस्ता है, अथर सस्ता है? टीवीएस सस्ता सर, टीवीएस 109 TVS 108,000 आप समझिए, और जो एथर एनर्जी का बेसिक वेरिएंट है रिश्ता का, वो 122,000 से स्टार्ट होता है, नियरली 14,000 का गैप है। करेक्ट करेक्ट, अच्छा ओके। हाँ तो परफेक्टली, हाँ, क्योंकि टीवीएस सस्ता है तो मैं भी वही सोचूंगा कि पहले जान रेंज जाने तो मुझे 14,000 सस्ता पड़ रहा है ना। बिकॉज वो क्या यस है, 14,000 पे तुम लोन पे लेते हो तो लोन पे वो इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। यस। ओके। और मतलब एक तो ब्रांड इमेज भी सर मैटर करता ही है, भले एथर कितना भी अच्छा हो, टीवीएस का जो लेगेसी ब्रांड है वो उनको मैटर करे, मतलब उनका एक्सटेंसिव डीलरशिप नेटवर्क है, क्योंकि बहुत सारी चीज ईवी परचेस के पहले बहुत सारी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सर्विस बराबर मिलेगी, रेंज अच्छा मिलेगा, हाँ चार्जिंग स्टेशन एक्सेस मिलेगा, तो एक टीवीएस को बाय डिफॉल्ट मतलब उनका लेगेसी प्लेयर है, इसके लिए वो एडवांटेज है जो एथर के पास नहीं एडवांटेज, है। हाँ। इट इज बिल्डिंग। तो इट इज बिल्डिंग, हाँ, तो इसीलिए वो दे आर लॉन्चिंग नए प्रोडक्ट्स, सॉरी नए स्टोर्स लॉन्च कर रहे हैं सो दैट पीपल नो कि चलो अथर का। तो ये है इंडियन मार्केट में मेजरली इज योर स्टोर्स, ये दिखता है। मतलब आई विल टेल यू, टाटा मोटर्स and Maruti. Why Tata Motors is doing well, sorry, Maruti is doing well, is because Tata Motors का सर्विस इज अ ह्यूज इशू। प्रोडक्ट भले अच्छा है, लेकिन सर्विस का बड़ा इशू है। मतलब मैं अच्छा प्रोडक्ट ले तो लूँ, पर अगर वो गाड़ी का सर्विसिंग ही नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा हो प्रोडक्ट का। सेम वे महिंद्रा, करेक्ट। महिंद्रा स्ट्रगल्ड इन इंडिया फॉर सो मेनी इयर्स इज बिकॉज ऑफ द आफ्टर सर्विस, एंड आज अभी वो प्रोडक्ट सच में अच्छा बना रहा है। बट अभी केवल ने क्या कर दिया ना, व्हाट व्हाट महिंद्रा हैज डन स्मार्टली इज दैट ईवीज को ज्यादा सर्विसिंग की जरूरत पड़ती नहीं है। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। ईवीज में हार्डली एनी सर्विसिंग, इंजन ऑयल नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो वो सिर्फ तुम्हारे इंजन नहीं ब्रेक्स होता ब्रेक मैम। चेक करते हैं और वो थोड़े बहुत बैटरी बैटरी। वैटरी चेक करते हैं। यस तो देर यस। इज हार्डली एनी सर्विस कॉस्ट, तो उसमें वो महिंद्रा चल गया, और अपने प्रोडक्ट ही ऐसा बना है कि सर्विस की टेंशन नहीं है। बट वही है उनके, ये अगर तुम वो एक्सयूवी 700 जो है डीजल वेरिएंट है, सेवन। अभी हार्डली उसके तीन चार डीजल वेरिएंट ही है। एक्सयूवी 700 है, थार है, एंड स्कॉर्पियो है। इसके अलावा दे डोंट हैव एनी पेट्रोल या डीजल प्रोडक्ट्स। वो है एक्सयूवी, छोटे वाले हैं प्रोडक्ट, बड़ा हार्डली कोई लेता है वो। एक्स एक्स क्या थ्री है, एक्स एक्स ओ। थ्री, थ्री थ्री एक्स एक्स ओ। है वो। तो उसके सेल्स देखो कम ही है। मेजरली महिंद्रा इज डूइंग गुड इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओनली, इज वन ऑफ द रीजंस। एंड टाटा यस डजंट सर। डू गुड इज बिकॉज, तो ये ओला इज सॉरी, दिस ओला का भी यही प्रॉब्लम था। ओला का भी ऑल्सो, ओला के तो फिर प्रोडक्ट्स ही खराब निकलने लग गए। सर ओला तो कैसा है सर ना, आपका सेल्फ सर सर्विस पे कभी फोकस ही नहीं किया, उसने नए नए मॉडल लॉन्च कर दिए, मतलब करेक्ट उसके पास 6 to 7 मॉडल्स है, जबकि मतलब लेगेसी प्लेयर्स है या एथर एनर्जी है ना, एक दो प्रोडक्ट लाते थे उसमें मल्टीपल वेरिएंट्स लाते थे। ये ओला तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स मल्टीपल वेरिएंट्स, और फिर से जो बाइक ई बाइक है जहाँ मतलब अच्छी अच्छी कंट्री क्रैक नहीं कर पाए, उन्होंने ई बाइक भी लॉन्च कर दी, मतलब प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस पर फोकस नहीं कर रहे, बट न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। सर ओला एक रैपिडो वाले से मैंने पूछा था, तो वो बोला ओला का फीचर्स तो बढ़िया है लेकिन आफ्टर सेल सर्विस इतना बकवास है। अगर वो सर्विसिंग के लिए भी कितना बार दिया था वो स्कूटर, ठीक है, फिर भी उसको 2 वीक 3 वीक ऐसे वेट किए जा रहा था, किए जा रहा था, और वो रैपिडो में अपना चलाता था तो प्रॉब्लम भी फेस होता था, उसको घर में बैठे रहना होता था। इवन वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि पुलिस केस करने के लिए रेडी था। तो फिर मैंने उससे पूछा, अगर इन फ्यूचर आपको ओला मान लो 10% 20% डिस्काउंट पे अगर बाइक आपको कंपनी ऑफर करती है तो आप लोगे? तो बोला, मैं डायरेक्ट बोला मैं नहीं लूंगा, इस लेवल की उसकी रेपुटेशन खराब हो चुकी है लोकल मार्केट में। करेक्ट। ओला का था ही, मतलब उन्होंने इतना एक्सपांड किया था कि ऐसा था कि अरे तुम ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, ऑनलाइन तुम पेमेंट करो और गाड़ी घर पे आएगी, ऐसा भी किया था वो लोग ने। हाँ सर। बट समहाउ वो आफ्टर, तो ये अथर इज डूइंग अ गुड जॉब, बिकॉज अथर इज बैक बाय हीरो, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अथर का, हीरो का स्टेक है अथर में, अगर यस तुमको सर। नहीं पता है तो। हाँ ओके।
So this is how the research should be. और जब जो न्यूज बता रहे हो मतलब अभी ये न्यूज तो ट्रैक करनी जैसी है ना अथर तो काफी दूसरे बार न्यूज में आया वापस ये अथर Right, sir. एंड दूसरा तुमने ही बोला ना लास्ट टाइम भी तुमने ही बोला था यस सर मैंने बोला। ओके या Okay, या thank शिवम you, sir. थैंक यू Hello. या शिवम गो अहेड शिवम विद योर न्यूज Yes, yes. Good morning, everyone. Today's news is discount shares rockets 7%, reclaims 10,000 mark after government clears JV joint venture with China's HKC. Shares of discount technologies release after the companies received approval for the Ministry of Electronics and Information Technology to form a joint venture with Chinese firm HKC Overseas Limited to ये manufacture. बोल दिया तुमने एक सेकंड शिवम ये बोल देना वापस क्यों बोल रहे हो Okay. एक में बोल दिया तुमने To manufacture display modules. The company said its wholly owned subsidiary Discount Display Technologies Private Limited will be converted into a joint venture entity. Discount will hold a 74% stake in the business, while HKC Overseas will own the remaining 26%. The joint venture will manufacture, develop, and distribute thin film transistor LCDs, liquid crystal modules, and other advanced display components. These products will serve a wide range of applications, including notebooks, mobile phones, televisions, automatic displays, industrial equipments, and monitors. शिवम ये न्यूज में बेसिकली न्यूज इतना ही था वो सब नहीं बोलना कि स्काई रॉकेटेड 7% रिक्लेम डिक्सन टेक्नोलॉजी एंटर्स JV sorry government clears JV with Chinese manufacturer HKC. Okay, so Dixon Technology will own 74% stake in the business while HKC Overseas will own 26%. क्या करते हैं the joint venture will manufacture, develop and distribute thin film transfer to LCDs, liquid crystal modules and other advanced display components. This product will serve as a wide range of applications including notebooks, mobile phones, television, automotive displays, industrial equipments and monitors. न्यूज इतना ही था तुमने इतना बड़ा क्यों लिखा है 3 का लाइन का ही न्यूज था Okay. Why have you written so big? अच्छा दूसरी बात डिक्शन टेक्नोलॉजी क्या करता है न्यूज तो अच्छा था अपडेट अच्छा है एनालिसिस कुछ है इसमें कुछ एनालिसिस कर सकते हो Uh, व्हाट इज द एनालिसिस so, since they are going for a joint venture, so the revenue of the company will increase in the near futures. ठीक है डिक्शन क्या करता है Sir, it is a EMS company, electronic manufacturing company, services company, which हम्म, produces semiconductors and सेमीकंडक्टर किसको distribute बेचता है सेमीकंडक्टर्स किसको बेचता है Samsung and other companies, कितने का आता है electronic companies. कितने का आता है सेमीकंडक्टर Uh, कितने दो टाइप्स के आते हैं सेमीकंडक्टर कंपटीटर कौन कौन है सर 2 टाइप्स के एक PNC फर्क क्या है उनमें कितने के आते हैं पहले तो कितने के आते हैं और फर्क क्या है दोनों में सर एक P सेमीकंडक्टर होता है और एक N सेमीकंडक्टर होता है किस सेमीकंडक्टर ब्रांड डिक्सन तुमको अगर तुम्हारे कंपनी के 4 चीजें नहीं पता क्या बनाती है किसको बेचती है देन तुम ये न्यूज बता क्यों रहे अपडेट ठीक है अच्छा था अपडेट कोई बात नहीं पढ़ना चाहिए तुमको परफेक्ट था अच्छा है अच्छी बात है कि डिक्सन ने ये किया है तो मेरा वही था एनालिसिस क्या किया है, तो अपडेट इज टोटली फाइन मैंने कितने बार बोला व्हेन यू राइट अ न्यूज दिस न्यूज शुड बी योर मार्केटिंग मटेरियल फॉर योर ओन कंपनी अगर तुमको कंपनी के बारे में जरा सा भी पता नहीं है
तो उसके बारे में लिख के कोई मतलब नहीं है। तुम इतना कुछ लिखा है, अननेसेसरी वेस्ट हो जाएगा। ओके सर। और जब भी लिखते हो तो कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। तुम जर्नलिस्ट नहीं हो, एनालिस्ट हो। एक भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। कोई डेटा पॉइंट, कोई सेंटेंसेस अगर वो वापस रिपीट हो रहा है, मतलब तुम जानबूझ के, तुमको जो चीज नहीं आ रही है वो तुम बता रहे हो। तुमको तुम्हारी तुम्हें कमियां दिखाने को, कम करने को तुम ये सब बता रहे हो। तो कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है, अपडेट अच्छा था, लिखा भी अच्छा था, बट वही है कि चूज क्यों किया ये न्यूज, क्वेश्चन वो आता है। सर क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजीज सेमीकंडक्टर में है, और अभी सेमीकंडक्टर मार्केट बहुत न्यूज़ में है इन मुझे फ्यूचर। पता है ना, वही तो मैंने पूछा कितने का आता है सेमीकंडक्टर, कौन लेता है, कौन बाय करता है तुमको पता है? नो। फिर फिर व्हाट इज द पॉइंट? अच्छा कर रहा है फाइन, तो तुमको पता है क्या कर रहा है। अगर नहीं पता देन व्हाट इज द पॉइंट? ये हो गया ना बात तो। यस। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि न्यूज खराब है, न्यूज अच्छा ही था, अपडेट भी था, मुझे भी अपडेट मिला जो सेक्शन में। बट द क्वेश्चन इज, जब अगर मेरी कंपनी पे रिसर्च है, इसका भी डेटा है, नो डाउट, मैं नहीं बोल रहा इसका डेटा नहीं है, तुमको ढूंढोगे तो मिल जाएगा, बट बहुत डिफिकल्ट है। इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे तुमको, प्रिडिक्शन करता क्या है। तो फिर जो चीज के डेटा रिलेवेंट है, इजी है। अभी इसने अतर का कैसे बोला, सब कुछ बोला ना उसने। यस सर। तो वैसे तुम क्यों नहीं बोल पा रहे हो उसके बारे में? क्या? guys, sorry, I have to leave. I have an urgent call. Sorry. नया नया लास्ट न्यूज तुम्हारी बात है? नया? Sir, can I share the screen? या श्योर। गाइस, एनी डाउट है तो मुझे सिर्फ मैसेज करो, कुछ डाउट है तो। आई हैव टू लीव, आई मैंने कॉल है अर्जेंटली। एंड टुमारो गाइस, टुमारो आई एम नॉट देयर, जस्ट फॉर योर अपडेट। टुमारो नो मॉर्निंग कॉल, आई एम गोइंग टू वन ऑफ द कॉलेजेस, सो विल मीट ऑन फ्राइडे, थर्सडे। कल क्या है? मीट ऑन थर्सडे। ओके। कुछ रहेगा तो मुझे मैसेज करो, नंबर, इफ एनी स्पेसिफिक डाउट्स। जिनको प्रेजेंटेशन करना है, वी कैन प्रेजेंट ऑन थर्सडे। Should I start? या Good morning, everybody. India's forex reserves from tourism fall 10.5% year on year in 2025. Based on RBI data, earnings from foreign tourists declined sharply from about $25 billion in 2024 to around $21.8 billion in 2025. Concurrently, in 2025, India recorded about 9 million foreign tourist arrivals. One of the major reasons for decline in foreign tourists is stiff competition from other Southeast Asian destinations. Even though the hospitality sector within India is doing well due to domestic tourism, the country is earning less foreign currency from inbound tourists. To conclude, one of the major players impacted by declining in foreign tourists is IHCL, since about international tourists contribute about 25% of the overall guest. Thank you. Okay. So to sum up, I think the Indian tourism falling because they have a huge competition from the South Asian countries. तो इंडिया में लोग क्यों नहीं आ रहे? क्या reason है? सर, इंडिया में क्या हो रहा है ना कि इंडियंस बाहर बहुत जा रहे हैं, और उतना प्रपोर्शन फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में नहीं आ रहे हैं. And it decreased 10.5% also. ये तो उस दिन वॉर भी हुआ था, वो भी एक रीजन है इसमें ना, 2015 में वॉर भी तो हुआ था। हाँ, That was one of the reason that it इंडिया has declined. पाकिस्तान वॉर. हाँ, तो it was one of the reason it declined.
ओके फाइन फाइन, आई थिंक जस्ट एन अपडेट। याद रखो कि ये नंबर्स गिर रहे हैं ऐसा। Hmm. ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच। इफ एनी डाउट लेट मी नो, आई एम नॉट देयर टुमारो, तो कुछ है तो मुझे भी बता देना। ओके हेलो सब बाय। भारतीय। एक बार मैंने आपको मार्केट ट्रैकर भेजा है, कल आप पूछे ना, हाँ हाँ वो एक बार हाँ, देख तो क्या देख बता रहा के हूँ, बता। आई हैव 2 मिनट्स। ये क्या हुआ सर, है मार्केट में? हम्म। हाँ देखा, मैंने जस्ट पढ़ा मैंने तुम्हारा, हाँ गो अहेड। निफ्टी क्या हुआ फ्रॉम? 8,700 बिप्स से डिक्रीज हुआ सर, फ्रॉम 26,328 to 24,028, in which the Nifty reality and Nifty Indian tourism has decreased the most. Nifty reality has decreased by 18,000 bips from 898 नहीं, ऐसा to नहीं लिखते, 730. 18,000 बिप्स नहीं लिखते हैं भरत। बिप्स इज हाँ, ओनली फॉर स्मॉल नंबर्स, एटीन पॉइंट ओके फाइव सर, परसेंट ही बोलते हैं। ठीक है ठीक है सर। ठीक सर है, वो बिप्स एक डॉट एकदम स्मॉल नंबर्स के लिए 100 200 1000 तक मैक्स। 1,000 तक, ठीक है सर। हाँ 18.5% फ्रॉम 898 to 733, नहीं, मेरा while क्वेश्चन था भरत कि हाँ निफ्टी सर, का हाई कितना था? निफ्टी का टू हाइट ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड 26,328। थ्री ट्वेंटी हाँ सर, हाँ ओके। और वहां से वो डिक्लाइन हुआ है 24,2048, 28। दैट इज हाँ एट सर, पॉइंट सेवन परसेंट हाँ सर, के फ्रॉम जैन। फ्रॉम Jan 2nd, हाँ which ओके, was high which was the last high. Okay. So उसमें tourism has declined, realty and tourism has declined. So realty the has most. declined the most. So 18%. अच्छा तो कैसे बोलना है ये, तुम ऐसा बोल सकते हो कि सर realty and tourism has declined 18.5% and 17.6% respectively. ठीक है, Okay sir, 18.5 while and the 17. हाँ सर, while हाँ the defense has outperformed the market by 7%, okay, followed by from followed by Nifty Metal, which was increased by 230 bips from level 1,421 to level 1,689, and Nifty PSU, which increased by 140 bips. भरत ये बिप्स ना, बिप्स हाँ कब सर, बोलते हैं? जब 2% तुम कंपेयर करते हो। तुमको आज 80% मिले थे, नेक्स्ट सेम में 85 मिले, तो दैट वाज अ 500 बिप्स इंक्रीज। ठीक है, ठीक। हाँ तुम्हारा सर, सेल्स 10% इंक्रीज हुआ है। सो 10% के तो ऐसा नहीं बोलते कि 1000 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुआ है, तो एब्सोल्यूट नंबर है ना। एब्सोल्यूट हाँ नंबर सर, को कभी बिप्स नहीं बोलते, बिप्स ओनली इफ यू हैव 2% टू टॉक अबाउट। वो ठीक है परसेंटेज का सर, रिप्लेसमेंट नहीं है बिप्स। इज व्हेन यू 2% है वो तुमको जब बताने तब तुम बिप्स का यूज करते हो। अभी तो तुम तो सिर्फ देख रहे हो निफ्टी कितना गिरा है, तो ऐसा नहीं बोलते सर निफ्टी 900 की बेसिस पॉइंट गिरा है। अगर मैं बोलूँ हाँ कि सर, जैन में 10% गिरा था और 11 और फेब में 5% गिरा है, हाँ मतलब सर, सॉरी जैन में 11% था और, तो वो इंक्रीज है, 11% था और अभी 12 हुआ है, तो 100 बेसिस पॉइंट का चेंज हुआ है उसमें, तो ये हो गया चेंज, ऐसा बोलते हैं। ठीक है ऐसे सर। अलग अलग नहीं बोलते कि इट हैज बिप्स, तभी यूज होता है व्हेन यू हैव परसेंटेज, दैट्स इट। ओके ठीक है, While तो the ओवरऑल energy हाँ हाँ go energy ahead. only decreased by 1.7%, which is majorly due to what I think is because of the demand increase due to the data centers increasing in India, sir. ओके ओके फाइन फाइन, गुड वन। सो गाइस, भरत हैज रिटन, और भी किसी ने किया था, बट ओवरऑल व्हाट हैज निफ्टी Sir, हैज I बिन। also send you. या आई थिंक आई सॉ दो तीन जिनका लिखा देखा मैंने। Market has declined. Just to give an update, market has declined 8.7% from the top. Nifty has declined 8.7%. उसमें Nifty tourism and Nifty realty were the worst hit, with realty decreasing 18.5% and tourism declining 17.6%. जो हम सेक्टर ट्रैक कर रहे हैं वही सबसे ज्यादा गिरा है। तो याद रखना है जब इंटरव्यू में बात करोगे तो इतने फोकस में बात करना है कि तुमको लगता है यहाँ से टूरिज्म विल रिवाइव क्या, क्योंकि सबसे इतना ज्यादा गिरा है, अभी गिरने का चांसेस, वैल्यूएशन भी सब कंपनीज के एट लोअर लेवल आए होंगे। अज्यूम्ड है, ऐसा जरूरी नहीं है नेक्स्ट क्वार्टर में भी वापस गिर सकता है।
जैसे अब ये प्रॉब्लम हो गया है फूड एंड एलपीजी का. Defense has outperformed with 7.1%. Nifty Metal 2.3%. Nifty Public Sector Banks is 1.4%. तो ये दोनों flat थे. Nifty Energy has decreased only by 1.7%. Due to majorly due to increase in data center developments in India. तो 8.7% पे निफ्टी टूरिज्म और निफ्टी रियलिटी ही गिरा है. अच्छा, तब इसमें और एक है भरत, व्हाट कैन यू डू कि इसमें निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है ना, 50 स्टॉक्स में कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा गिरे, वो भी एक आ सकता है. ठीक बिकॉज है सर, वो ये निफ्टी टूरिज्म और निफ्टी रियलिटी तो आता नहीं है निफ्टी में. निफ्टी का अगर तुम देखोगे कंपोनेंट तो इट इज योर फाइनेंशियल सर्विस सबसे ज्यादा है, आईटी है दूसरा. हाँ सर, हाँ, तो ये वो 50 स्टॉक भी एक बार देख लेना कि कौन से स्टॉक्स निफ्टी के जो स्पेसिफिक सेक्टर है ना उसमें क्या इम्पैक्ट हुआ है, कंपोनेंट्स. ठीक है. ठीक है. सब सेक्टर का करो सर, और ओनली निफ्टी के इसका हाँ, निफ्टी 50 का. निफ्टी 50 का हाँ, उसमें जो भी ठीक है कंपोनेंट्स सर. है 8.7 उसमें कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा गिरा है. ठीक है सर, मैं Okay. मैं हाँ, एक बार भेज देख लेना देता हूँ, आप सब. देख के हाँ, भेज. सर निफ्टी टूरिज्म का टिकर सिंबल तो पता नहीं सर क्या है, क्या आपको पता है सर? निफ्टी टूरिज्म का आ जाता है. सर निफ्टी निफ्टी टूरिज्म रियलिटी, निफ्टी है ना, वो है ना अपने मार्केट ट्रैकर में है ना उसका. टिकर सिंबल। मार्केट ट्रैकर में है, देखो उसका निफ्टी टूरिज्म का सिंबल. नहीं, मार्केट ट्रैकर में है, खोलोगे तुमको मिल जाएगा. ठीक. ओके. ओके गाइस, थैंक यू, आई हैव अ कॉल टू अटेंड. ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑन थर्सडे. बाय गाइस, बाय बाय. Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, सर. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.